देखिए, उस पे हमारा 5 दिन से जो आज 5वां दिन है हमारे जो एजिटेशन का, और वो बिल्कुल गैर कानूनी है और जन विरोधी अध्यादेश है। और ये जो पुराना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री का जो एक सर्कुलर आया था 15 जुलाई 2024 का, उसके डिफाइंस में है। और इसीलिए आज जो है हम 5वें दिन सड़कों पर हैं और किसी भी तरीके से हम इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है और जो फेयर और फ्री ट्रायल का कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ है। 5 दिन हो गए आप लोगों को ये एजिटेशन। एक आश्वासन तो बहुत आ रहे हैं, कल भी आए, लेकिन हमने इस बार बिल्कुल ठानी हुई है कि केवल आश्वासन पे काम नहीं चलेगा। जब तक एक कॉन्क्रीट रेस्पॉन्स मतलब जब तक ये जन विरोधी अध्यादेश वापस नहीं लिया जाता, जब तक इसको रोका नहीं जाता है। इस अध्यादेश के तहत जो पुलिस थानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही की सुविधा शुरू करने की बात कही गई थी, जब तक इसको रोका नहीं जाता है तब तक ये केवल अध्यादेश के किसी भी आश्वासन पर ये जो मूवमेंट हमारा चल रहा है वो बिल्कुल नहीं रुकेगा। सर, आप क्या चाहते हैं, एलजी साहब वापस ले लें ये ऑर्डर? हाँ, बिल्कुल। 15 जुलाई 2024 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम सेक्रेटरी का जो एक सर्कुलर है, हम चाहते हैं कि अक्षरशः उसी का पालन हो, जो कि पूरे देश के स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज के सेक्रेटरीज को डायरेक्शन था कि भाई थानों में या कोई भी ऐसी जगह पे जो थानों के अधीन है, पुलिस की गवाही नहीं होगी। सर, एक पर्सनल लेवल इनका देखिए, ये जो बड़ा क्लियर है, ये दिल्ली के वकीलों का लड़ाई नहीं है। दिल्ली के वकीलों की जो लड़ाई है ये जनता के लिए है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके जो कि किसी भी क्रिमिनल केस में मुलजिम है या जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस का ट्रायल आगे चलने वाला है। ये उसके जो मौलिक अधिकार जो हमारा संविधान देता है उसका हनन है, फेयर और फ्री ट्रायल का। तो इसलिए ये जो लड़ाई दिल्ली के वकील लड़ रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी के लिए, हर ट्रायल जिसके जो भी ट्रायल फेस कर रहा है, ये उस पब्लिक के लिए लड़ाई है। Of the insurance company, and what is the reason behind it? You see, the overall background, if I want to tell you, that insurance business in India today is 1.3 lakhs crore premium in terms of gross premium. And but overall, if you ask me, the percentage of population is around 22% is being covered under the insurance, which is very small. And IRDA has got the vision to cover entire population by 2047. So insurance is definitely going to play a very major role. But the point is, the hospitals today are facing the sustainability issue. And insurance company also, in a way, have the same problem. But we have found out that the administrative costs of the insurance company is very high. It is almost touching 40% in some cases. So we are emphasizing to the insurance company to improve their efficiency so that the actual money collected by the premium is exactly spent on the treatment. So that is the overall aspect of it. Now coming to this particular suspension which has been given to the Bajaj Allianz, number of hospitals who are our members submitted to us the aspect which Bajaj Allianz was troubling them. For example, the tariff revision which should happen as per the agreement was not happening, number one. Number two, the deduction made in the claims were very, very unreasonable, and it was creating problem for the patient, because if the 5 lakhs rupees claim is gone to the insurance company by the hospital and they only pass, let us say, 3.5 lakhs. So who will pay 1.5 lakhs? So we will ask patient to pay. The patient is saying why we should pay, because we have been insured fully. So this is one. Secondly, even the time of pre-authorization, the patient is there ready for the surgery, and pre-authorization sometimes they reject outrightly. So these are some of the major issues. In any case, there were some other issues also. Deduction I already mentioned to you. So we wanted Bajaj Allianz to clarify some of these points with our member hospital. Unfortunately, they did not respond. And when we went to the press by serving the notice, it came to their notice and then they talked to us. So one thing is about Bajaj Allianz, good point I am saying, that they immediately, same day, they talked to us and they sent a mail that please hold on, we are sending a top management delegation and they are coming here tomorrow.
So I hope when we put that their top management team with our CFOs, CFO means we have CFO forum. So 7 or 8 CFOs are coming tomorrow for the meeting. So in my opinion, once they sit face to face, we should be able to resolve major cases. Let me also add here, this case against the Bajaj Allianz, it should not be cited that they are the only one against whom we have problem. There are quite a few common issues which also will be applicable to other insurance companies. So I think this will be a test case. And once we are able to resolve tomorrow, and I think when we bring out to the notice of other insurance company, in the larger game plan, if you ask me, we should be able to address this one. And let me add one more point. General Insurance Council also has taken note of it, and they also are coming here on 2nd September, and they will also be meeting. So I think overall, if you see, our interest is not necessarily the interest of the hospital. Our interest, larger interest is that our patients should not suffer. सर, ये बजाज अलायंस को लेकर आपने नोटिफिकेशन जारी किया क्योंकि पेशेंट्स बहुत सफर कर रहे हैं. एग्जैक्टली पूरा मामला क्या है और शायद जनरल काउंसिल जो है दे आल्सो रीच्ड आउट. या देखिए, ऐसा है, इंश्योरेंस का मार्केट अभी बहुत बढ़ने वाला है. इस समय ये 1.3 लाख करोड़ है ओवरऑल अगर आप प्रीमियम की बात करें तो, लेकिन ये अभी भी सिर्फ 22% पॉपुलेशन को ही कवर करता है, जबकि IRDA का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो कहता है कि 2047 तक एंटायर पॉपुलेशन शुड बी कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस. सो उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये देखने का है कि इंश्योरेंस सेक्टर इज गोइंग टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर. अब हमें हो क्या रहा है कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है, अब उस एग्रीमेंट को रिवाइज करना होता है एवरी 2 years, एवरी 3 years, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए. अब जो ये बजाज एलियांस का केस है, इसके संदर्भ में हमें हमारे जो मेंबर हॉस्पिटल हैं, एक नहीं कई लोगों ने हमें कंप्लेंट सबमिट करते रहते हैं. तो उसमें हमने ये देखा कि ये एग्रीमेंट को रिवाइज नहीं किया इन्होंने. डिडक्शन जो ये कर रहे हैं वो बहुत ही अनरीजनेबल है. हमारे अगर डॉक्टर्स ने उसको रिकमेंड किया है पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन को ध्यान में रखते हुए, तो हमें उसके हिसाब से जाना है, पर ये उसको कई बार ध्यान नहीं रखते तो हैवी डिडक्शन बहुत हैवी हो रहे थे. प्री अथोराइजेशन जो हम सबमिट करते हैं उसमें कई बार बहुत डिले हो रही थी और कई बार आउटराइट रिजेक्शन भी हो रहे थे. और फाइनल एक पॉइंट था कि जो डिस्चार्ज के टाइम कई बार 6, 7, 8, 9 घंटे लग रहे थे टू सेटल डाउन दी क्लेम्स. तो इनको ध्यान में रखते हुए हमने इनको नोटिस दिया था 11 अगस्त को, लेकिन और हमने कहा था 18 अगस्त तक हमें इनका जवाब दीजिए, ये जो इश्यूज है. अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा वो शायद देख नहीं पाए या क्यों नहीं हुआ, तो हमने फिर 24 को हमने एक इनको नोटिस दिया कि हम आपका सस्पेंड कर रहे हैं अगर आप अभी भी जवाब नहीं दे पाते हैं 1 सितंबर से. जब ये प्रेस में चला गया तो हमें उनकी तरफ से फोन आया, मेल भी आया. उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग तैयार हैं आने के लिए एंड वी विल, हम डिस्कस करेंगे आपके साथ. तो ये एक अच्छी बात है मैं कहूँगा बजाज की तरफ से. तो ये मीटिंग जो है कल हो रही है हमारे यहाँ, जिसमें हमारे जो CFOs हैं हॉस्पिटल के वो लोग आएंगे और इनके 3 मेंबर आए हैं जो टॉप मैनेजमेंट है बजाज एलियांस के. और मुझे उम्मीद है कि इसमें इसका समाधान निकल आएगा. और एक बात मैं और कहूंगा कि ये समाधान जो निकलेगा ये सभी इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी एक टेस्ट केस माना जाएगा. अच्छा, एक और है कि जनरल इंश्योरेंस जो काउंसिल है उन्होंने भी इस चीज को नोट किया है और उन्होंने मेरे से कल ही बात की है और वो यहाँ पे आ रहे हैं 2 सितंबर को और वो भी हमारे साथ मीटिंग करेंगे. तो मुझे लगता है कि इन दोनों मीटिंग के बाद एक हम शायद SOP बना पाएंगे कि आगे से इस तरह की दिक्कत ना हो. किस तरह से प्रोसीजर बनाया जाए कि किस तरह से क्लेम सेटल हो, किस तरह से डिडक्शन हो, किस तरह से रिवीजन हो, ये सारी बातों का हम एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहेंगे आफ्टर दीज 2 मीटिंग्स.